Find the equation of a circle which touch x-axis and y-axis and perpendicular distance of the center of the circle from the given line is 5, and given that circle lies in a first quadrant. According to the problem, circle lies in the first quadrant, okay, and which touches both the axes, x-axis and y-axis. A circle which touches both the axes, x-axis and y-axis, and the perpendicular distance from the center. If a circle is touching both the axes in the first quadrant, the center will be like h comma h. Okay, when circle touches both the axes and in the first quadrant, means center will be like h comma h, and radius will also be equals to h, because this is h and this is h. Okay, and now center is h comma h and radius is h, and obviously h is greater than 0 because h comma h lies in the first quadrant. Okay, and the perpendicular distance from center to the line 3x plus 4y minus 11. So 3x plus 4y plus 11 is equal to 0. From this line, the distance of the center is 5 units. This is the line, let this is 3x plus 4y plus 11 is equal to 0. And the perpendicular distance from this line to center, from the center. And it is given in the question, the perpendicular distance from the center to this line is 5 units. Okay, so use the perpendicular formula, distance formula, h comma h, 3h plus 4h plus 11 upon root के अंदर 9 plus 16 is equal to 5. So this is 7h, 11 का mod is equal to 25. Okay, so 7h plus 11 is equal to plus minus 25. 7h is equal to 14, then h is equal to 2, and 7h is equal to minus 36. Then h is 7h is equal to minus 36. Then h is equal to minus 36 upon h upon 11. 7, sorry. But h can't be negative. We know that h is the positive. So h is 2. This is the acceptable value. H is equal to 2. So now center is 2 comma 2 and radius is 2. Equation of circle x minus 2 का whole square plus y minus 2 का whole square is equal to. Okay? Awesome. Okay. Next one is circle described on the line joining 0, 1 and a, b as a diameter. 0, 1 and a, b as a diameter. This is a, this is b, and AB is the diameter of this circle. And this circle cut the x-axis at a point whose abscissa are the roots of the equation. Okay, so first find the equation of the circle. Equation of circle whose diameter is 0, 1 and a, b. X minus 0, x minus a plus y minus 1, y minus b is equal to 0. This is x square minus ax plus y square minus y square minus by or minus y plus b is equal to 0. So
finally this is the circle for which 0 comma 1 and a comma b are the diameters. Up now this circle cut the x-axis. Where it cut the x-axis? Any circle cut the x-axis, where y will be 0. This, let's suppose this is a circle and this is x-axis. This is, let's suppose this is C and this is D. Okay. So this circle is cutting the x-axis for which y is equal to 0. X-axis means y is equal to 0. So put y is equal to 0, then x square minus ax 0 0 0 plus b is equal to 0. So this is the quadratic in x. When I am solving with this circle with x-axis, okay. So you will get a quadratic in x. The value of x is accordingly the abscissa of C and D. जो वैल्यू यहां से निकलेगा x का वैल्यू, वो तो एब्सिसा है किसका? C और D का. ओके. तो अब एब्सिसा किस इक्वेशन का रूट है? लेट सपोज यहां से एक x1 वैल्यू आ रहा है, एक x2 आ रहा है. तो जो C और D का जो एब्सिसा है, जो x कोऑर्डिनेट है, वो तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो गया ना. बस यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एब्सिसा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. एब्सिसा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन मतलब x स्क्वायर माइनस ax प्लस b. इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इन दोनों पॉइंट्स के एब्सिसा. ओके. हाँ सर. Next one is a point A 2 comma 1 is outside the circle. This is a circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This circle is a given and a point A 2 comma 1 outside the circle, from which two tangents are drawn AP and AQ. Two tangents are drawn AP and AQ. The question is a point A 2 comma 1 is outside the given circle and AP and AQ are the tangent to the circles, then equation of the circle circumscribing the triangle APQ. So this AP and AQ are the pair of tangents and PQ is the chord of contact. Okay. And now we have to find the equation of a circle passing through the APQ. Means we have to find the circumcircle of the triangle APQ. Ultimately we have to find the circumcircle of the triangle APQ. Okay. जब हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट कि जैसे कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है सर्कल पर, और इस दोनों जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स है इन्होंने यहाँ पे PQ एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाया. अब इस APQ का जो सर्कम सर्कल होगा वो इस ओरिजिनल सर्कल के सेंटर से पास होगा. ये हमने थ्योरी में डिस्कस किया था. और इसका सेंटर कितना है? -g, माइनस है. तो जो ट्रायंगल APQ का जो सर्कम सर्कल है, for this circle this AC acts as a diameter, for circumcircle of triangle APQ. APQ ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल होगा उस ट्रायंगल के लिए AC, this AC acts as a diameter. Now if you know the diameter of the circle, you can find the equation of circle. For this circle, this is an angle 90 degree. Okay, this angle is 90 degree. That's why
This is a circle for which AC is a diameter. Then equation of circle, diameter are 2 comma 1 and minus g comma minus f. Use diametric form, x minus 2 x plus g plus y minus 1 y plus f is equal to 0. Okay. So इस क्वेश्चन में बस ये है कि मतलब ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि अगर इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है तो ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और ये पेयर ऑफ टेंजेंट ने जो ट्रायंगल बनाया है एपीक्यू, उस ट्रायंगल एपीक्यू का जो सर्कल आएगा फॉर विच दिस लाइन एसी एज अ डायमीटर. ओके. हाँ सर. Okay, next one is equation of the diameter of the circle. A circle is given. Circle is what? X minus 2 का whole square plus y plus 1 का whole square is equal to 16. This is the equation of circle. And question is find the equation of the diameter of this circle which bisect the chord cut off by the circle on the line x minus 2 by minus 3 is equal to 0. This is a given circle and this is a given line which cuts off on a chord. Let this is AB. Okay. And now you have to find the equation of the diameter which bisect this chord. Center is 2 comma minus 1 and you have to find that diameter of the circle which bisect this chord. Okay. You have to find this diameter. Okay. गिवन सर्कल का वो डायमीटर बताना है जो इस कॉर्ड AB को बाइसेक्ट करेगा. अब जो डायमीटर होगा वो डेफिनेटली सेंटर से पास होगा पहले. तो ये जो डायमीटर है वो सेंटर से पास हो रहा है. अब कोई भी जैसे सेंटर से कोई कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, जैसे ये सेंटर से एक लाइन सेगमेंट पास हो रहा है CM, है ना ये, और ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये तो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड पर तो वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, है ना. तो डेफिनेटली ये जो डायमीटर है यही मेरा रिक्वायर्ड डायमीटर हो गया जो AB को बाइसेक्ट भी कर रहा है और सेंटर से तो पास होगा ही. तो फाइनली आई रिक्वायर्ड दिस डायमीटर which is obviously perpendicular to this given line. Okay, let this is A, B, C and this is let D. So I have to find diameter, this diameter, okay, which is passing through the center and middle point of AB. So this line, this diameter perpendicular to this line x minus 2y minus 3 is equal to 0. अब perpendicular to this line means line will be like 2x plus y plus lambda is equal to 0. Any line which is perpendicular to this line can be written as 2x plus y plus lambda is equal to 0. And this line is passing through the point minus 2 comma minus. So 4 minus 1 plus lambda is equal to 0. Lambda is coming out minus 3. So equation of this diameter 2x plus y minus 3 is equal to 0. Clear? हाँ सर. Okay.
next one is the locus of the point of intersection of the tangent to the circle. This is circle x square plus y square is equal to a square. Okay. And a locus of the point of intersection of the tangents to the circle at the points whose parametric angles differ by pi by 3. अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि लेट की एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, तो इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है P पर और Q पर, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R है. You have to find this one, locus of this one, locus of the point of intersection है. तो locus निकालना है R का, means consider H, K. एंड क्वेश्चन में क्या गिवन है कि P और Q का जो पैरामेट्रिक एंगल का जो डिफरेंस है वो पाई बाई 3 है. लेट P पर पैरामेट्रिक एंगल अल्फा है और Q पर बीटा है. लेट P पर जो पैरामेट्रिक एंगल है वो अल्फा है और Q पर बीटा है, और एक क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा का जो डिफरेंस है वो पाई बाई 3 है. ओके. अब यहाँ पे देखो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमने पढ़ा है कि एक स्टैंडर्ड सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और यहाँ पर लेट की पैरामेट्रिक एंगल अल्फा या पैरामेट्रिक एंगल बीटा है, तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया a cos अल्फा a sin अल्फा, q का कोऑर्डिनेट हो गया a cos बीटा कॉमा a sin बीटा. ये हो गया. तो वी नो दैट कि तो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या था कि पी क्यू का इक्वेशन क्या होता है, पी क्यू का इक्वेशन भी हम याद रखते हैं. एंड सेकेंडली कि जो पी क्यू और क्यू पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है, पी पे और क्यू पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो एच होता है ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, एंड के इज व्हाट a sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, पढ़ चुके हैं, याद रखना होता है. ओके. अब यहाँ पे जो p और q का जो डिफरेंस है, मतलब अल्फा बीटा का जो डिफरेंस है वो पाई बाई 3 है. ओके. तो दिस इज पाई बाई 6, तो h इज व्हाट a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos पाई बाई 6. ये कितना हो गया पाई बाई 6. cos पाई बाई 6 कितना होता है रूट 3 बाई 2. ओके. cos पाई बाई 6 कितना होगा cos 30 डिग्री, हाँ, तो रूट 3 बाई 2. ओके. एंड k इज इक्वल टू a sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन ये फिर से कितना हो गया रूट 3 बाई 2. तो ये दो रिलेशन आ गए. And I have to find the locus of R, H, K. So finally, you have to eliminate alpha, beta, alpha and beta, such that you will get a relation, a mathematical relation between H, K. That will be the locus. So now, cos alpha plus beta by 2 is what? 2H upon root 3. ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा रूट 3h अपॉन 2a. ओके. सिमिलरली साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 रूट 3k अपॉन 2. ओके. स्क्वायर एंड ऐड, ये हो जाएगा 3h स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ओके. तो फाइनली आ गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बाई 3. तो फाइनली लोकस क्या हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बाई 3 व्हिच इज आल्सो अ सर्कल. ओके. so this is the finally locus of that point. तो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो हम याद रखते हैं वो यूज हो रहे हैं यहाँ पे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स ड्रोन एट अ पॉइंट P अल्फा एंड Q बीटा.
the locus of the middle point of the chord of a circle. This is a circle, x square plus y square is equal to 4. Okay, and find the locus of the middle point of this chord, middle point of the chord of this circle, such that the segment intercepted by the chord on a curve subtends a right angle at the origin. Okay, तो फाइनली क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, एक सर्कल गिवन है और इसका एक chord है, जैसे ये chord है, राइट, ये AB chord हो गया है ना. अब इसका जो मिडिल पॉइंट है, फाइनली इसका मुझे लोकस बताना है. तो लेट कि उस chord का मिडिल पॉइंट क्या है, h, k. अब ये जो chord है, ये किसी दूसरे सर्कल को दूसरे कर्व को, कर्व क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. ये कर्व है, इस कर्व को भी इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे. लेट सपोज यहां पे इंटरसेक्ट. ओके, और इसका जो इंटरसेक्शन पोर्शन आ रहा है इस कर्व के साथ, जैसे लेट सपोज ये CD है, कॉर्ड जो कॉर्ड AB है ना, जब उसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो किसी दूसरे कर्व एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y को फिर से इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड द सेगमेंट इंटरसेप्टेड बाय दिस कर्व सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द ओरिजिन. और ये जो CD है ये ओरिजिन पे 90 डिग्री बना है. क्वेश्चन ये है, अब देखो ओरिजिन यहां से देख के समझ में आता है कि ओरिजिन तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मींस ओरिजिन इसके कहीं इसी कर्व पे होगा. तो लेट सपोज कि यहाँ ओरिजिन ले लिया मैंने, वो रफली कहीं भी ले सकते हो वैसे तो, उसका कोई यूज नहीं है. और यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन. क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है. पहले एक सर्कल गिवन है और उसका कोई एक कॉर्ड है, उसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है, सच दैट कि ये जो कॉर्ड है इसने जो इस कर्व को इंटरसेप्ट किया है CD पर, तो वो जो CD है वो ओरिजिन पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है. ओके, ये है क्वेश्चन. ओके, अब जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि कोई कर्व है और उसका लाइन ऑफ, मतलब एक कर्व है देखो और एक लाइन है, एक कर्व और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से मीट कर रहे हैं, एक कर्व और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से मिलाया जा रहा है, देन हमें ये क्लिक करना चाहिए कि ये तो कुछ होमोजेनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट हो रहा है. होमोजेनाइजेशन में क्या होता था, होमोजेनाइजेशन को थोड़ा सा रिकैप करते हैं. ये तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. होमोजेनाइजेशन में क्या होता था, जैसे कोई कर्व है और ये कोई लाइन है, तो इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको लेट सपोज कि मैंने ओरिजिन से मिला दिया ऐसे, ये लेट A है और ये B है, ये कर्व पे सेकंड डिग्री कर्व है और ये कोई लाइन हो गया. तो उसके बाद क्या करते थे कि जो OA और OB का जो कंबाइंड इक्वेशन है वो कैसे निकल के आता है. अगर कोई कर्व और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से मिला रहे हैं, है ना, फिर उसके बाद हम विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन होमोजेनाइज दिस कर्व, देन यू विल गेट अ सेकंड डिग्री कर्व, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कर्व, दैट रिप्रेजेंट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB. अब उसी के बीच में फिर एंगल कितना दे रखा है यहाँ पे, 90 डिग्री बन रहा है. तो अब अगर मैं OA और OB का मेरे पास कंबाइंड इक्वेशन आ गया होमोजेनाइजेशन के बाद, तो उसमें A प्लस B तो 0 होगा, क्योंकि होमोजेनाइजेशन के बाद जो इक्वेशन आया है वो तो OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन आया है, और OA और OB के कंबाइंड इक्वेशन के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर विल बी 0. बस वही लॉजिक यहां लगाएंगे. तो सबसे पहले उस इक्वेशन का, इस लाइन का इक्वेशन तो पता होना चाहिए. तो अब ये वो लाइन वो है इस सर्कल की, वो कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट h, k है. तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड of x square plus y square is equal to 4, whose middle point is h comma k, which is t is equal to s. ये स्टैंडर्ड होता है. अगर मिडिल पॉइंट अगर h comma k है तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, t is equal to s1. तो t is equal to s1 means xx1 मतलब hx plus ky minus 4
is equal to S1 means h square plus k square minus 1. So finally hx plus ky is equal to h square plus k square. This is equation of a line chord AB, and this curve is x square plus x square minus 2x minus 2y is equal to 0. This is second. है ना? तो पहले तो हमने अभी AB का इक्वेशन निकाला है. ओके, AB का इक्वेशन निकाला है, मतलब इस लाइन का इक्वेशन निकाला है जो इस कर्व को किसी दो पॉइंट पे C और D पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना? अब वो जो CD इंटरसेप्ट है which is making an angle 90 degree at origin. ओके, तो अब अगर कोई लाइन, ये वाली लाइन और ये कोई कर्व है जिसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने ओरिजिन से मीट कराया है. ओके, तो फिर अगर मैं इसको होमोजेनाइज कर दूं इस कर्व को, क्योंकि इस कर्व में तो सेकंड डिग्री का टर्म है, फिर 1 डिग्री का टर्म है, फिर 1 डिग्री का टर्म है, तो हम होमोजेनाइज कैसे करते हैं कि लाइन की इक्वेशन में जैसे hx प्लस ky अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया. अब इसकी हेल्प से हम इस कर्व की इक्वेशन को होमोजेनाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखें मेकिंग होमोजेनाइजेशन x स्क्वायर, ये तो 2 डिग्री है ही पहले से, माइनस 2x, इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया hx प्लस ky अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. ओके, फिर उसके बाद माइनस 2y, फिर हमने किससे मल्टीप्लाई किया hx प्लस ky अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0. होमोजेनाइजेशन के बाद ये इक्वेशन आ गया, होमोजेनाइजेशन के बाद ये इक्वेशन आ गया फाइनली, व्हिच इज homogeneous equation of second degree. This equation represent combined equation of OC and OD. Okay? तो ये जो इक्वेशन है जो फाइनली निकल कर आया है होमोजेनाइजेशन के बाद, ये तो OC और OD का कंबाइंड इक्वेशन है. अब इस इक्वेशन के अंदर, अब इस जो पेयर ऑफ ये जो लाइंस हैं इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री. अगर इससे जो दो लाइन रिप्रेजेंट हो रही है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखो कितना आ रहा है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा, तो यहाँ पे आ रहा है 1 है ना, और यहाँ से जनरेट होगा कितना माइनस के 2h अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, है ना. ये यहाँ से तो x स्क्वायर जनरेट ही नहीं होगा. प्लस वाई स्क्वायर के साथ कौन आएगा, वाई स्क्वायर यहाँ से तो जनरेट ही नहीं होगा. ओके, वाई स्क्वायर यहाँ से आएगा, वो कितना आएगा माइनस 2k, देखो माइनस 2k अपॉन एच स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, है ना. और कुछ एक्स वाई भी आएगा, आने दो. तो ये a हो गया और ये b हो गया, इनका समीशन कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए. तो फिर बस 1 माइनस 2h अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस माइनस 2k अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके, तो यहां से ये कितना हो गया 2h अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2k अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो फाइनली लोकस जो आ गया वो आ गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू h स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब हमने रिप्लेस कर दिया h को x से और k को y से. तो फाइनली इक्वेशन आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. दिस इज द लोकस ऑफ दैट मिडिल पॉइंट.